السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، گزشتہ بیان میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر فرمایا۔ انبیاء کرام کی تعداد، رسول اور آسمانی کتابوں کی تعداد، نبی کسے کہا جاتا ہے، کون نبی ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا، نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اخلاق عظیمہ کے مالک ہوتے ہیں۔ ان نکات پر گفتگو آپ نے سنی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں کچھ عرض کروں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے تخلیق آدم علیہ السلام، جس کے بارے میں امام عشق و محبت نے اپنے اشعار میں لکھا تھا کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ آج کی ہماری گفتگو بھی کچھ نکات پر محمور رہے گی، جن میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کا ذکر فرمایا۔ بہرحال کچھ علماء کرام نے تو لکھا ہے کہ فرشتوں سے مشورہ کیا، لیکن بہرحال اس میں مسائل ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس کا بھی واضح طور پر جواب موجود ہے، لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان الفاظ کو بھی ترک کر دوں جہاں پر کچھ اندیشہ ہونے کی امید ہے۔ دوسرا ہمارا جو موضوع ہوگا، جو پوائنٹ ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ وہ خالق و مالک ہے، وہ چاہتا تو بغیر ذکر کے پیدا کر دیتا، بغیر مشورے کے پیدا کر دیتا۔ اس نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں فرشتوں سے مشورہ ایسا کیوں کیا؟ تیسرا جو ہمارا نقطہ ہے وہ ہے فرشتوں نے تعجب کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جانے لگا تو فرشتوں نے تعجب کیا، حیران ہو گئے اور انہوں نے اعتراض کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنے علم سکھائے۔ اس کے بعد جسم آدم کے لیے مٹی لی گئی۔ کہاں سے مٹی لی گئی؟ کون کون سی مٹی لی گئی؟ اور پھر انسان کو خوشی اور غم جو ملتی ہے تو ان میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کو خوشی کم ملتی ہے، غم زیادہ ملتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو داخل کرنے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اسی لیے آخر تک ہمارے ویڈیو پر بنے رہیں اور تقریر کو سماعت کریں، علم میں اضافہ ہوگا۔ اب ہم اپنے بیان کو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ مفہوم آیت کریمہ کا میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ جب یہ مشورہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تو ہوا یہ کہ اب فرشتوں سے جب مشورہ ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مشورہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس مشورے کے پیچھے کئی سارے راز ہوتے ہیں، کئی ساری وجہ ہوتی ہیں۔
पहली वजह ये होती है कि मशवरा जब हम करते हैं तो कभी कभी हमें ये लगता है कि यार ये काम हम करने जा रहे हैं, हो सकता है इसमें कामयाबी मिले या ना मिले। मैंने भी ये काम शुरू करने से पहले मशवरा किया, तो हालांकि जितने भी जवाब आए मस्बत आए तो मैंने शुरू किया। बहरहाल तो ख्याल ये रहता है इंसान का कि अगर मैं काम को करूं इसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात पर मशवरा करता है, या फिर वो तजुर्बेकार लोगों के पास जाता है कि मैं कैसे करूं। तो बहरहाल इसमें जाहिर ये होता है कि कभी कभी इजाजत लेने के लिए मशवरा किया जाता है, कभी कभी जानकारी हासिल करने के लिए मशवरा किया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से मशवरा किया तो उस मशवरे के पीछे हिकमत क्या थी? इस मशवरे के पीछे हिकमत ये थी कि अल्लाह ताला अलीम व खबीर है, वो सब कुछ जानता है, उससे कोई शय पोशीदा नहीं। और फरिश्तों का भी वही मालिक है, फरिश्तों का भी वही खालिक है, उसने ही फरिश्तों को पैदा किया, वो सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। अपने छोटों से अल्लाह ने मशवरा क्यों किया? इसके पीछे हिकमत ये थी कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से मशवरा किया तो फरिश्तों की भी अहमियत साबित हो गई, और जिसके बारे में मशवरा किया उसका भी मर्तबा बुलंद हो जाए, इसलिए मशवरा किया परवरदिगार आलम ने। वरना वो चाहता तो बगैर मशवरे के पैदा कर देता, कोई रोकने वाला मौजूद नहीं। बहरहाल फरिश्तों से मशवरा करके अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क करने से पहले नूरी मखलूक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। ये मशवरा करने की हिकमत। और मशवरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि अल्लाह ताला फरमाता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है कि बेशक मेरे रब ने मेरी उम्मत के बारे में मुझसे मशवरा तलब फरमाया। अब यहाँ पर भी वही मसला आ जाता है कि ये मशवरा तलब करना भी इसी हिकमत के पेश नजर था कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत की इज्जत अफजाई हो, और अल्लाह ताला ने अपनी लाइल्मी या एहतियाजी के तौर पर माअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा नहीं किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि वशाविरहुम फिल अम्र, यानी आप इनसे उमूर में मशवरा करें। यानी सहाबा इकराम के मुतालिक अल्लाह ताला ने अपने महबूब से फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, जब आप कोई काम फरमाएं, जब कोई काम करने का इरादा करें तो अपने सहाबा से मशवरा करें। इसमें होता यह है कि सामने वाले की इज्जत अफजाई होती है। बहरहाल मशवरा करने की ये हिकमतें थी जो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। अब आगे जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मशवरा किया तो फरिश्तों ने जब सुना कि अल्लाह ताला जमीन पर एक ऐसी मखलूक बनाने वाला है, एक इंसान बनाने वाला है, तो फरिश्तों ने एतराज किया और क्या कहा, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे पालनहार, क्या ऐसे लोग को नाइब बनाएगा जो जमीन में फसाद फैलाएंगे और खून रेजियां करेंगे? हम तुझे सराहते हैं, हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी हम्द के लिए काफी हैं मौला। तो ऐसे को जमीन पर खल्क करेगा, ऐसे को जमीन पर बनाएगा कि जो जमीन पर जाने के बाद फसाद करेंगे। क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने जमीन में जिन्नातों को बसाया था, कई हजार साल पहले। तो जिन्नात जाहिर सी बात है वो आग से बने हुए हैं, उनकी फितरत में है झगड़ा फसाद, ये सारा कुछ वो करते थे। तो फरिश्तों के सामने जिन्नात का तजुर्बा मौजूद था अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, और अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म दे रखा था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, और ये तमाम जो जिन्नात गुजरे उनके बारे में फरिश्तों को मालूम था। तो फरिश्तों ने उसी बेस पर एतराज किया। बहरहाल मुखालिफत के तौर पर नहीं, बल्कि उनके जो समझ में आया उन्होंने इस पर एतराज किया। जो अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म दिया था उस इल्म की बुनियाद पर उन्होंने एतराज किया। और उनके एतराज करने के पीछे मकसद ये था कि जो जिस्म आदम बनाया जा रहा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो जिस्म बनाया जा रहा है, वो चार चीजों की आमेजिश से बनाया जा रहा है। यानी चार चीजों की मिलावट, उसमें आग भी थी, मिट्टी भी थी, पानी भी था, हवा भी थी। इन चारों चीजों का मजमुआ जब तैयार होगा तो क्या होगा भाई? आग और पानी को आप करीब करीब करें तो क्या होगा? या तो आग रहेगी या पानी रहेगा, दोनों में से एक ही शय मौजूद रहेगी।
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ بھی موجود رہے اور پانی بھی موجود رہے، دونوں میں سے ایک ہی چیز موجود ہوگی۔ ہوا اور مٹی کو آپ قریب قریب کریں، اب جب ہوا چلتی ہے تو مٹی کو اڑا لے جاتی ہے، ہوا جہاں پر ہوتی مٹی آسانی سے وہاں پر نہیں رہتی ہے، تو یہ چاروں چیزیں، اب ہوا چلتی ہے تو آگ بھی زیادہ دہک جاتی ہے، تو اسی طرح سے یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ٹھہری، اپوزیشن ہے، یہ آپ سمجھیے کہ اپوزیشن۔ کیونکہ میں نے شروع ہی میں بتایا تھا کہ میرا یہ بیان عام فہم ہوگا، عام انداز میں ہوگا، عام زبان میں ہوگا تاکہ عوام سمجھ سکے۔ تو بہرحال یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپوزیشن ہیں، تو یہ جب ایک جگہ پر جمع کر دی جائیں گی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ فساد نہ کریں؟ تو اسی بنیاد پر فرشتوں نے جب اعتراض کیا تو بہرحال فرشتوں نے اپنے انداز میں اعتراض کیا۔ اس کے بعد جب فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یہ اچھا، ان کا اعتراض کرنا بھی اپنی جگہ پر حق تھا، جس کے بارے میں عرض کر چکا۔ بہرحال جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں کا جو اعتراض کرنا تھا وہ جسم آدم کو دیکھ کر کے اعتراض انہوں نے کیا تھا، لیکن جسم آدم کے اندر جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رکھی تھیں، بہرحال وہ تمام چیزیں فرشتوں پر منکشف نہیں کی گئی تھیں، اس وجہ سے فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھائے۔ وعلم، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے رب کائنات وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو جو پیدا فرمایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کا علم سکھا دیا۔ اور بعض محققین نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا تھا یا جو پیدا کرنے والا تھا، ما کانا وما یکون کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا، اور پھر فرشتوں سے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ آدم زمین پر فساد کرے گا، اب ایک کام کرتے ہیں، اب ہم تمہیں آزماتے ہیں کہ تم افضل ہو یا آدم افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو تمام چیزوں کے نام بتا ہی دیے تھے، فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو تم جواب دے دو، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بہرحال فرشتے جواب نہیں دے سکے۔ حضرت عباس ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اکرمہ، حضرت قتادہ، ان حضرات سے ایک بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا، یہاں تک کہ بڑے اور چھوٹے پیالے کے نام بھی بتائے۔ اور بعض حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف قول منسوب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونا ہے، ان تمام چیزوں کا علم دے دیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقصد ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں اور ان کے ناموں کا علم عطا کر دیا، خواہ وہ پہلے پائی جا چکی ہیں یا بعد میں پائی جانے والی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہے ان چیزوں کو پہلے بنا دیا تھا یا بعد میں بنانے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا، اور یہ دینا ضروری بھی تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو تو زمین پر آنا تھا نا۔ زمین پر جب بندہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ جب ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر وہ تمام چیزوں کو جان رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے، اور اگر وہ جان ہی نہ پائے کہ جس جگہ پر میں رہ رہا ہوں، یہ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ درخت ہیں، کہ اب ان کو میں لوہے کا کوئی سامان بتا دوں، یہ ساری چیزیں جب مجھے معلوم نہیں ہوں گی تو میرے لیے زندگی گزارنا بڑی مشکل ہو جائے گی۔
تو आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इन सारी चीजों का इल्म अता कर दिया। यहाँ तक कि रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो जबानें सिखाई वो 7 लाख जबानें आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई, एक दो नहीं 7 लाख। आज आप तहकीक करें कि दुनिया में कितनी जबानें बोली जाती हैं। बहरहाल मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं कहीं कि इस दुनिया में कितनी जबानें बोली जाती हैं। आप अंदाजा लगा करके देखिएगा, जीपीटी से पूछिएगा, गूगल पे जाइएगा, आपको मालूम होगा कितनी जबानें दुनिया में बोली जाती हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो एक दो नहीं बल्कि 7 लाख जबानों का इल्म दिया। आज जितनी जबानें दुनिया में बोली जा रही हैं, इन तमाम जबानों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम जानते थे। इनमें से एक जबान सुनकर के मुझे कभी कभी हंसी भी आती है कि जैसे चीन की आप जबान देखें, चाइना की, किस तरह से उनकी अंदाज होते हैं, किस तरह से उनकी जबान होती है। बहरहाल अब जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखा दिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जबानें सिखा दी, उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से फजीलत मिली। साथ ही साथ मैं एक बात और अर्ज करता चलूं कि इल्म की वजह से किस किस को फायदा मिला। 7 अंबिया किराम ऐसे हैं कि जिनको इल्म की वजह से फजीलत दी गई। पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इनको इल्म की वजह से फरिश्तों पर बुजुर्गी दी गई और फरिश्तों को उनके सामने सजदा करने का हुक्म दिया गया। जी हाँ, फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया है। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ था, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। एक ने इनकार कर दिया था। इंशाअल्लाह आज अगर वक्त रहा तो उसके बारे में मैं अर्ज करूंगा, वरना अगले बयान में। और ये जान लीजिए कि ये बयान मैं बड़ा लंबा चलाने वाला हूँ। 30-30 मिनट में आपको मैं कोशिश करूंगा कि पूरी चीजें आपके जहन में, आपके दिमाग में उतार सकूं, क्योंकि जब आम जलसा होता है, जब फेस टू फेस आवाम होती है, तो वहां पर वक्त भी कम मिल पाता है, आवाम के पास भी वक्त कम होता है, उलमा के पास भी वक्त कम होता है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर इंसान बैठता है तो वो थोड़ा फ्री होता है। मोबाइल जब हाथ में होता है तो बंदा फ्री होता है, या यूं कह लूं कि जब बंदा फ्री होता है तभी मोबाइल हाथ में लेकर के बैठता है। तो कम से कम जब इतने हम फ्री होकर के बैठें तो जितना हमारा वक्त मोबाइल पर गेम खेलते हुए, उल्टी सीधी चीजें देखते हुए बर्बाद होता है, तो कम से कम आधा घंटा, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट हम निकालें, जिनमें हम दीन सीख सकें, तारीख सीख सकें, अपनी तारीख हम जान सकें। तो ये बयान बहरहाल लंबा जाएगा। अब इसके कितने पार्ट होंगे ये तो अल्लाह बेहतर जाने। मैंने शुरू कर दिया है, अब कामयाबी तक पहुंचाना अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में। वो जहां तक चाहेगा वहां तक बात चलेगी, और जैसा आपका इंटरेस्ट रहेगा वैसा आगे वीडियो बनेगा। बहरहाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से फजीलत दी गई। दूसरे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। अब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के मुतालिक अहले इल्म के दरमियान थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि ये नबी हैं कि वली हैं। कुछ अहले इल्म कहते हैं कि ये अल्लाह के वली हैं, कुछ कहते हैं कि ये नबी हैं। बहरहाल इनको भी इल्म की वजह से फजीलत दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम की और इनकी मुलाकात हुई, कुरान करीम में उसका जिक्र है, और कुछ अशिया के जाहिर व बातिन का फर्क वाज़ेह हुआ। नंबर 3, यूसुफ अलैहिस्सलाम। इल्म की वजह से आपने ख्वाब की ताबीर बयान की, और ख्वाब की जब ताबीर आपने बयान की तो आप कैद खाने से निकल करके दरबार में पहुंचे, वजीर खजाना बने, उसके बाद आप बादशाही भी आपको मिल गई। ये किस वजह से हुआ था? यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्म की वजह से। बहरहाल अब इस की गहराई में अगर जाऊंगा तो मुझे लगता है इसी पर जो मेरे 8-9 मिनट बचे हैं वो भी निकल जाएंगे, और मुझे अपनी गुफ्तगू मुकम्मल भी करनी है। चौथे, अब जब इनका जिक्र आएगा यूसुफ अलैहिस्सलाम का, तो इंशाअल्लाह मैं पूरा जिक्र करूंगा कि इनको कैसे कैसे कहां तक लाया गया और कैसे परेशान किया गया, फिर वो बादशाह बने। बहरहाल आगे चलें। चौथे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से बिल्कीस जैसी मलिका बहैसियत ज़ौजा मिली, और उसे भी आपके इल्म की वजह से ईमान नसीब हुआ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से मनसब नबूवत के साथ साथ बादशाही भी हासिल रही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा हजरत मरियम की तोहमत को इल्म की वजह से ही दूर फरमाया। साथ में
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कायनात आलम से ज़्यादा उलूम अता फरमाकर खिलाफत इलाहिया और शफाअत कुबरा के दर्जे रफ़िया पर मुतमक्कन फरमाया। यानी अल्लाह ताला ने जिन्हें सबसे आखिर में भेजा उन्हें सबसे ज़्यादा इल्म अता करके भेजा। हमारे और आपके आखिरी नबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कुरान पाक में भी 7 चीज़ों के मुतालिक जिक्र है, वो एक दूसरे के बराबर नहीं। आइए अब गुफ्तगू सुनी लीजिए। आलिम और जाहिल बराबर नहीं, कुरान कहता है। खबीस और तैयब बराबर नहीं, यानी पाक और नापाक। दोज़खी और जन्नती बराबर नहीं, अंधा और आंख वाला बराबर नहीं, जुल्मत और नूर बराबर नहीं, सर्दी और गर्मी बराबर नहीं, जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं। ये कुरान करीम में जिक्र आया है। बहरहाल इसके मुतालिक मौला कायनात का भी कौल हमें नजर आ रहा है। अब उस गुफ्तगू में अगर हम जाएंगे तो मसला बड़ा लंबा हो जाएगा। अब मैं अपनी आगे की तरफ चलता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया गया। कैसे बनाया गया, किस मिट्टी से बनाया गया, इसके बारे में कुरान करीम में जगह जगह पर जिक्र आया है। आइए अब हम कुरान करीम की सूरह साद में चलते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। याद करो उस वक्त को जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा, बेशक मैं एक बशर कीचड़ से बनाने वाला हूं, और उससे मुराद आदम है, यानी कीचड़ से बनाने वाला हूं। फिर तफसीर जलालैन में भी मिलता है, यहां भी इंसान मुराद है आदम अलैहिस्सलाम से। यहां पर भी मुराद इंसानों से उनके असल नाम आदम अलैहिस्सलाम ही है। यानी यहां पर जहां पर भी जिक्र आया है कि इंसान बनाने वाला हूं या इंसानों की तख्लीक करने वाला हूं, ये जितने भी जिक्र किए गए करीब करीब वो सारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक ही हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाला हूं। बहरहाल अब जिस्म आदम के लिए मिट्टी ली गई। मिट्टी लेने कौन आया? जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला ने जब जिस्म को बनाना चाहा तो मिट्टी मंगाई। मिट्टी लेने के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहले भेजा गया कि आप जाएं और जमीन से मिट्टी लेकर के आए। जब जमीन पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो जमीन रोने लगी और अर्ज करने लगी कि आप मिट्टी को लेकर के जा रहे हैं मेरे दामन से, लेकिन इससे आदम बनाए जाएंगे, इंसान बनाया जाएगा, नाफरमानी करेगा तो जहन्नम में जाएगा, मुझे तकलीफ होगी। मिट्टी रोने लगी, गिरियावजारी करने लगी। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मिट्टी को छोड़ करके अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचते हैं कि परवरदिगार, मिट्टी ने ऐसे ऐसे अर्ज किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ऐसे वापस आए तो फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया, इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा गया। बहरहाल आखिर में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब वो हाजिर हुए तो मिट्टी लेने के लिए जब वो आगे आए तो मिट्टी ने उनसे भी अर्ज की कि आप ना लेकर के जाएं मेरे दामन से मिट्टी, इससे इंसान बनेगा, नाफरमानी करेगा, जहन्नम में डाला जाएगा, मुझे तकलीफ होगी। तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने उसकी आजिज़ी और इनकिसारी रोने धोने पर कोई गौर व फिक्र नहीं किया, आपने मिट्टी उठाई लेकर के चले गए, परवरदिगार की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इजराइल, क्या मिट्टी ने तुमसे कुछ अर्ज नहीं किया? तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि परवरदिगार, मिट्टी ने मुझसे भी अर्ज किया था, लेकिन मैंने ये कहकर के उसकी बात अनसुनी कर दी कि जो अल्लाह ताला का हुक्म है मुझे उसे पूरा करना है, इसलिए मैं मिट्टी ले आया। इजराइल अलैहिस्सलाम कौन है? इन्हीं का नाम हजरत मलकुल मौत है। जब मिट्टी को लेकर के आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इजराइल, मिट्टी को मिट्टी से तुमने जुदा किया है, अब मिट्टी को मिट्टी से मिलाना भी तुम्हारा ही काम होगा। यानी जब इंसान की मौत का वक्त आएगा तो इंसान के जिस्म से रूह निकालने का जो काम है वो तुम्हारे हवाले किया जाता है। यानी मिट्टी को मिट्टी से जुदा किसने किया था? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने।
اور مٹی کو उसी मिट्टी से फिर से किसने मिलाया? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के हुक्म से। बहरहाल कैसे मिट्टी ली गई? हजरत अबू मूसा अशअरी हदीस पाक में आया है, हजरत अबू मूसा अशअरी बयान करते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम जमीन से एक मुट्ठी भर मिट्टी ले आओ और उस मिट्टी में हर किस्म के जर्रात शामिल किए गए। सुर्ख रंग, सफेद रंग, सियाह रंग और उनके दरमियान रंग वाली मिट्टी ली गई। इसी तरह कुछ मिट्टी नरम जमीन से ली गई और कुछ सख्त जमीन से ली गई। ऐसे ही तैयब व खबीस मिट्टी को शामिल किया गया। जितने किस्म के रंगों वाली मिट्टी आपके जिस्म से लगाई गई, आपकी औलाद में उतने ही रंग पाए जाते हैं। इसी तरह कोई नर्म दिल, कोई सख्त दिल, कोई नेक और कोई बुरे, यानी हैं सब आदम ही की औलाद। दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब आदम ही की औलाद हैं। बहुत पहले एक जब मैं पढ़ा करता था तो उसमें एक जिक्र आता था कि इंसान पहले बंदर था। आपने सुना है कि नहीं सुना है? जरूर सुना होगा कि इंसान पहले बंदर था, बाद में वो बंदर डेवलप होते होते तरक्की करते करते इंसान बन गया। अब ये पता नहीं साइंटिस्ट था कि कोई बावला था कि वो बेख्याली में बक रहा था, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई, इस तरह का कोई बंदा था कि जब जाहिर सी बात है, एक सोचने की बात है कि जब बंदर डेवलप होके तरक्की करके इंसान बन गया, तो इंसान जब बना तो तरक्की इंसान पर आके रुक क्यों गई? भाई इंसान की तरक्की इंसान पर आकर के रुक क्यों गई? इस तरक्की को और आगे जाना था, इंसान से कुछ और बन जाता, फिर कुछ और से कुछ और बन जाता, फिर वो बनता ही रहता, वो बुलंद होता ही रहता। तो बहरहाल इंसान की औलाद हैं, दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही की औलाद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं। हर तरह की मिट्टी आपके जिस्म में मिलाई गई, आपकी तखलीक में मिलाई गई। नरम मिट्टी भी थी, सब आप देखते हैं ना, नरम मिजाज के लोग मिलते हैं, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में नरम मिट्टी मिलाई गई थी। सख्त मिजाज के लोग भी मिलते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में सख्त मिट्टी भी मिलाई गई थी। बिल्कुल काले सियाफाम लोग मिलते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में काली मिट्टी भी मिलाई गई थी। बिल्कुल गोरे और सफेद लोग भी मिलते हैं, उस तरह की भी मिट्टी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में मिलाई गई थी। पाक तबीयत के लोग मिलते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में वो मिट्टी भी लगाई गई। खबीस तबीयत के लोग भी मिलते हैं, वो मिट्टी भी लगाई गई। बहरहाल जितनी मिट्टी लगाई गई, जिस तरह की मिट्टी इस्तेमाल की गई, उस तरह के इंसान पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और इंसान जितने भी हैं वो सारे के सारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। आदम अलैहिस्सलाम वो बशर हैं कि पहले इंसान भी हैं, पहले नबी भी हैं, तमाम इंसानों के बाप हैं। इसीलिए आपका लक़ब अबुल बशर है। अब जब जमीन से मिट्टी ली गई तो जमीन से जो चश्मे जारी किए गए, आप देखते हैं ना, जमीन से चश्मे जारी हैं, नदियां जारी हैं, और जमीन से पानी निकलता है। कहीं कहीं पर पानी आप देख रहे हैं कि वो जमीन बिल्कुल एक तरफ ऐसे है और उसमें से जमीन से नीचे से पानी निकल रहा है। तो ये पानी क्यों जारी किया गया? रिवायतों में आता है कि जब इस मिट्टी को बनाने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को बनाने के लिए मिट्टी जमीन से ली गई, तो जमीन इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई है कि चश्मे जारी हो गए। जैसे इंसान रोता है ना, तकलीफ के बायस उसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, इसी तरह जब मिट्टी रोई तो चश्मे जारी हो गए। अब इंसान को खुशी और गम क्यों होता है? खुशी कम होती है, गम ज्यादा होते हैं। फिर आदम अलैहिस्सलाम की सूरत को देखकर फरिश्ते हैरान हो गए। जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बना तो उस जिस्म को देख करके फरिश्ते हैरान हो गए, और फिर आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया। सारों ने सजदा कर लिया, इब्लीस ने इनकार कर दिया था। इनकार उसने क्यों किया था? और इसी तरह के बहुत सारे दिलचस्प टॉपिक आगे आने वाले बयान में आप सुनते रहेंगे। आप जानते हैं कि हफ्ते में एक ही बयान आता है, एक ही बयान आएगा इंशाअल्लाह। अगर आपकी डिमांड होगी ज्यादा बयान की तो ज्यादा बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे, और अभी शुरू का मामला है।
कमियां होंगी, गलतियां होंगी, तो उसकी इस्लाह के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और आगे अपने दोस्तों के पास इसे पहुंचाते रहें ताकि वो भी इल्म सीखें, आप भी इल्म सीखें। मुझे बोलने में अगर कोई आपको कमी लग रही हो या और भी कुछ आपको नजर आए कि इसमें कमी है, तो उसमें भी इंशाअल्लाह सुधार किया जाएगा। और जैसा कि मेरा उसूल आप देख रहे हैं कि हफ्ते में एक बयान आता है, लेकिन एक क्लिप जो आती है दिलचस्प मालूमात के एतबार से, क्या आप जानते हैं कि हवाले से, वो रोज आती है। लेकिन इतवार को चूंकि ये बयान आना है तो इतवार को वो क्लिप नहीं आएगी, 1 या 1.5 मिनट की जो आती है वो क्लिप नहीं आएगी। इतवार को पूरा बयान आपको इंशाअल्लाह 9 से 10 बजे के बीच रात में ये बयान आपको मुकम्मल मिलेगा। अब आने वाली गुफ्तगू, जैसा मैंने अभी अर्ज किया कि कौन कौन से उसमें पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे, अभी बहुत सारा मेरे पास जखीरा बाकी है आपके सामने बयान करने के लिए, आपको देने के लिए, आपके इल्म में इजाफा करने के लिए। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, हाफिज नियाज अहमद के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व मा अलैना इल्लल बलाग।